آمین. سسٹر سائمہ, بہت ہی بلیسڈ پرسٹیج, بہت برکت ملی مجھے. آئی فیل دا انوائنٹنگ سو اسٹرانگ. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بابرکت دعا کے لیے بھی. خداوند کا شکر کرتے ہیں اور آپ کے لیے خداوند سے بہت ساری برکتوں کو چاہتے ہیں. آمین. اور اب وقت ہے کہ ہم فائر آف گاڈ منسٹریز کے پلیٹ فارم پر سسٹر سونیا عاشر کو ہم انوائٹ کرتے ہیں کہ سسٹر جی آئیں اور خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. God bless you. Welcome. Praise the Lord. سسٹر جی میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی سسٹر جی خیر. تھینک یو سو مچ. مسیح کے بابرکت جلالی مقدس نام میں آپ سب کو سونیا عاشر کی طرف سے بہت بہت سلام. اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خداوند میں خیریت سے ہوں گے اور خداوند نے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھا. خداوند کا شکر ہو. خداوند بارہا ہمیں اکٹھا کرتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی گہرائی باتوں کو, اس کی سچائیوں کو ایک دوسرے سے شیئر کریں. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. خداوند نے مجھے یہ موقع دیا. تو آج میں آپ کے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو جو بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے تھینکس گیونگ. خدا کے لیے جو ہم کرتے ہیں, شکر گزاری جو کرتے ہیں, آج ہم اس پر سیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. جس طرح کے ہم سب جانتے ہیں کہ جب آپ کے لیے کوئی شخص کام کرتا ہے تو ہم اسے تھینکس کرتے ہیں, اسے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی مدد کی کسی بھی طور سے. جب آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے تو آپ کو اس کو سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ آپ کو تھینکس کرتا ہے. اور جب اکثر بھی آپ کی یہ لائف میں ایکسپیرینس ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں. آپ کا یہ دل ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے لیے اتنی محنت سے کچھ کیا ہو تو آگے سے وہ آپ کو تھینکس نہ کرے تو آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اس نے مجھے رپلائی میں رسپانس میں تھینک یو نہیں بولا. تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب کسی کے لیے کچھ کریں تو وہ ہمیں تھینکس بولے, آج خداوند بھی ہم سے چاہتا ہے کہ جب خداوند نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمیں بھی خداوند کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اس کے حضور میں شکر گزاریاں لے کر جانی چاہیے. تو جب ہمیں کوئی تھینک یو نہیں کرتا تو ہمیں ہرٹ ہوتا ہے, ہمیں فیل ہوتا ہے. ہم بات اکثر کرتے ہیں کہ آپس میں کہ میں نے اس کے لیے یہ کیا اور اس نے مجھے تھینک یو تک بھی نہیں بولا. چاہے اس کے رسپانس میں وہ چیز ہمیں نہ ملے لیکن اگر ہمیں کوئی ایک ہلکا سا تھینک یو بھی بول دے تو ہماری جو خوشی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم سب جانتے کہ خداوند نے ہمیں بنایا, اس نے ہمیں اتنا کچھ بخشا, ہمیں زندوں کی زمین پر زندہ رکھا, تو ہمیں بھی خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. میں داؤد کی زندگی سے کہ کس طرح وہ خداوند کے حضور میں شکر گزاری کرتا ہے میں آج آپ کے ساتھ بیان کروں گی. تو آج کا ٹاپک ہے تھینکس گیونگ, خدا کے لیے جو ہم کریں شکر گزاری. ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے پہلا تواریخ اور اس کا چیپٹر 29 اور ورس ہم اس کی دیکھیں گے 10. لکھا ہے داؤد خداوند کے حضور میں کیا کہتا ہے, داؤد کس طرح خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے. لکھا ہے پس داؤد نے ساری جماعت کے آگے خداوند کا شکر کیا اور داؤد کہنے لگا, اے خداوند میرے باپ اسرائیل کے خدا, عدل و آباد مبارک ہو. یہاں پر داؤد نے خداوند کے نام کو جلال دیا ہے اور اسے مبارک کہا ہے. 11ویں آیت میں لکھا ہے, اے خداوند عظمت اور قدرت اور جلال اور غلبہ اور حشمت تیرے ہی لیے ہے, کیونکہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے تیرا ہے. اے خداوند بادشاہی تیری ہے اور تو ہی باحیثیت سردار سبوں سے ممتاز ہے, اور دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے, اور تو سبوں پر حکومت کرتا ہے, اور تیرے ہاتھ میں قدرت اور توانائی ہے, سرفرازی کرنا اور سبوں کو زور بخشتا تیرے ہاتھ میں ہے. اب اے ہمارے خدا ہم تیرا شکر اور تیرے جلالی نام کی تعریف کرتے ہیں. پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے.
यहाँ पर देखें, हमें दाऊद की जिंदगी से सीखना है कि दाऊद ने खुदावंद की शुक्रगुजारी किस तरह की। हम आज जैसे शुक्रगुजारी करते हैं कि जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में काम किए, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है बच्चों के लिए, घर के लिए, जो कुछ आपके पास बरकतें हैं, हम उस तरह खुदावंद की थैंक्स गिविंग करते हैं। हम इस बात को समझते हैं ये शुक्रगुजारी ही है। लेकिन जिस तरह दाऊद खुदावंद की शुक्रगुजारी करा, यहाँ पर दाऊद ने क्या किया, खुदावंद के नाम को जलाल दिया। खुदावंद के जो दाऊद जिस जिस चीज के खुदावंद लायक है, दाऊद ने अपने होंठों से खुदावंद को उस तरह जलाल दिया। लिखा है कि अजमत, कुदरत, जलाल, गलबा, हशमत क्या है, खुदावंद के है। जब हम खुदावंद के हजूर में जाएं और हम कहें कि खुदावंद, हमें बाज़ दफा पता नहीं होता कि हम किस तरह शुक्रगुजारी करें। सम टाइम जब हम खुदावंद के हुजूर में जाते हैं, हमने सारी लिस्ट की जो हमारे आगे होती, जो खुदावंद ने हमें दिया होता है, हम उसकी थैंक्स गिविंग, उसकी शुक्रगुजारी कर लेते। बाद में हमें पता नहीं चलता कि हम किस तरह खुदावंद को और ज्यादा थैंक्स करें, और ज्यादा उसकी शुक्रगुजारी करें। तो दाऊद ने देखें कितनी खूबसूरती के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी की। उसने खुदावंद को कहा, तू अजमत तेरी है, कुदरत तेरी है, जलाल तेरा है। तो हमें भी खुदावंद को इस तरह खुदावंद का शुक्र अदा करना है कि खुदावंद तू कितना अजीम है, तू कितना जलाली है, हशमत तेरी है, कुदरत तेरी है, जलाल तेरा है। लिखा है कि बादशाही, उसने कहा बादशाही तेरी है, आसमान तेरा है, जमीन तेरी है। अजीजों, जब हम खुदावंद के हजूर में जो कुछ हमारे इर्द गिर्द है, हम जब आंखें बंद करें और सारी कायनात को देखना शुरू करें, तो अजीजों आपका सर जब शुक्रगुजारी में झुक जाएगा तो आपका दिल करता जाएगा हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते ही चले जाएं। जो कुछ खुदावंद ने आज हमें जो इज्जत दी है, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास दौलत है। लिखा है 12वीं आयत में लिखा है, और दौलत इज्जत तेरी तरफ से आती है। ये हम समझते हैं कि ये दौलत जो हमने आज कमाई है, आज जो हमारे पास दौलत है, ये हमारी ही मेहनत का असर है, इसमें खुदावंद का कुछ भी नहीं। बहुत से लोग ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि ये मैं देर रात को लेट घर आता हूँ या आती हूँ, दिन को जल्दी उठती, ये सब मेरी ही मेहनत से। जो लोग खुदावंद में नहीं है, जो खुदावंद में मिच्योर नहीं है, वो यही समझते हैं कि ये मेरी ही मेहनत का फल मुझे मिला है। लेकिन अजीजों, जब खुदावंद हमें सेहत ही ना दे तो क्या हम ये मेहनत कर सकते हैं? लिखा है कि दौलत इज्जत खुदावंद की तरफ से आती है। ये खुदावंद हमें गिफ्ट देता है, हमें ये बरकत देता है। तो हमें खुदावंद को ये कहना है कि खुदावंद आज जो कुछ मेरे पास है, ये सब कुछ तेरा है। लिखा है तू सबों पर हुकूमत करता है। खुदावंद सब चीज पर, खुदावंद का क्या है, इख्तियार है। लिखा है तेरे हाथ में कुदरत, तेरे हाथ में तवानाई, जो आज हमारे पास सेहत है, तवानाई है, ये खुदावंद की तरफ से है, ये सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद हमें क्या करता है, लिखा है कि खुदावंद हमें जोर बख्शता है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जब खुदावंद हमें जोर देता है तभी हम मेहनत कर सकते हैं। तो हमें इस तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी, जो कुछ खुदावंद हमें देता है, हमें उस हर बात की शुक्रगुजारी करनी है। 13वीं आयत में लिखा है, अब ए हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र और तेरे जलाली नाम की तारीफ करते हैं। जब हम खुदावंद की तारीफ करते हैं, खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बयान करते हैं, असल में ये है शुक्रगुजारी, खुदावंद की तारीफ करना। किसी को जब हम तारीफ करते हैं खुदावंद, इसी तरह खुदावंद की हम जब तारीफ करते हैं तो हम उसके हजूर में शुक्रगुजारी लेकर जाते हैं। लिखा है, आगे एक और आयत पढ़ूंगी, 14वीं आयत में लिखा है कि अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को खाकसार समझना। हम अपने आप से कहें कि खुदावंद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तू ही है जो मुझे ये सब जोर देता है। दाऊद कहता है मैं कौन हूं, मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या, कि हम तेरी तरफ से खुशी नजराने देने के काबिल हों। अपने आप को समझे कि हम किसी काबिल नहीं। जब हम खुदावन के हजूर में झुक जाए तो अपनी सारी जो हमारे जहन में आता है कि ये सब हमारा ही किया हुआ, हमारे
हम आज कर रहे हैं, जो कुछ हमारे पास है, तो अपने आप को समझे कि हम कुछ किसी चीज के भी काबिल नहीं। जिस तरह दाऊद कहता है, खुशी खुशी से खुदावंद के हजूर जब जाते हैं तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद हम किसी काबिल नहीं है। आगे लिखा है, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों से हमने तुझे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम खुदावंद के हजूर में कुछ देते हैं, किसी भी तौर से देते हैं, तो ये खुदावंद के दिए हुए में से हम क्या करते हैं, खुदावंद को देते हैं। हालेलुया। जिस तरह हम जबूर 100 में देखते हैं, जबूर नंबर 100 और उसकी जब हम 4 आयत देखते हैं तो उसमें भी लिखा है कि हमें किस तरह खुदावंद के घर में जाना है। सम टाइम हम जब खुदावंद के घर में जाते हैं तो हम कहते हैं आज मेरी ये प्रॉब्लम है, आज मेरा ये मसला है, आज मैं पास्टर जी से कहूंगी मेरे लिए ये दुआ करें। हम बहुत सी रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं खुदावंद के हजूर में, खुदावंद के घर में, खुदावंद के जब हम चर्चिस में भी जाते हैं तो हमारे जहन में बहुत सी चीजें चलती हैं और हम कहते हैं आज हम इस चीज के लिए दुआ करेंगे, आज हम स्पेशल पास्टर जी के पास जाकर उसे कहेंगे हमारे सर पर हाथ रखे और हमारे लिए दुआ। हमारे जहन में इधर उधर की बातें होती कि आज किस तरह हम अपनी प्रॉब्लम को खुदावंद के घर में लेकर जाएं। तो खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है, लिखा है, सब बहन भाइयों को पता है, जबूर नंबर 100 और उसकी 4 आयत में लिखा है, शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। जब भी खुदावंद के हजूर में, खुदावंद के घर में जाएं तो क्या करना है, शुक्र गुजारी। चलते चलते जाएं, घर से चर्च जा रहे, खुदावंद की शुक्र गुजारी करते जाएं कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस काबिल बनाया। मुझे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो चल नहीं सकते, जो खुदावंद के घर में नहीं जा सकते, जिनके पास टांगे नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, लेकिन जो खुदावंद के घर में जा रहे हैं उसके लिए हम शुक्र करें कि खुदावंद तेरा शुक्र है, हम चल कर तेरे घर में जा रहे हैं। शुक्र गुजारी करते हुए क्या करना है, हमने उसके फाटकों में और उसकी तारीफ के, उसकी हम्द के गीत गाते हुए हमें क्या करना है, उसके हजूर में जाना है। हालेलुया। और खुदावन चाहता है, अगर हम देखें पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि हर एक बात में शुक्र गुजारी करो। क्या करो, हर एक बात में। यहाँ पर बहुत एक मुश्किल डिसीजन है कि जिस तरह हम बीमारी में हैं, फर्ज करें हम ऐसी मुश्किल में फंसे हुए हैं तो हम क्या करें। शुक्रगुजारी बहुत मुश्किल काम है इस सिचुएशन में, लेकिन खुदावन का कलाम ये बता रहा है कि हर एक बात में, हर एक सिचुएशन में हमें क्या करना है, खुदावन की शुक्रगुजारी करनी है। क्या लिखा है, लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदावन की क्या मर्जी है कि हर एक बात में, हर एक बात में, चाहे आप बीमारी में हैं, मुश्किल में हैं, किसी भी हालात से गुजर रहे हैं, आप क्या करें, खुदावन की शुक्रगुजारी करें। तो देखें किस तरह आपके हर वो काम जो है, जो आपको मुश्किल नजर आते हैं, वो आसान होते चले जाएंगे, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। अजीजों, एक स्टोरी आपके साथ बयान करूंगी। एक शख्स अपनी बात बताता है कि मेरी एक बेटी थी और वो कहता है कि मेरी बेटी थी और मैंने उसे वादा किया कि तुम ये एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर, अच्छे नंबरों से पास हुई तो मैं तुम्हें एक गाड़ी लेकर दूंगा, और जो उसकी मनपसंद गाड़ी होती है। तो उसकी बेटी क्या करती है, एवरी डे अपने बाप के पास आती है, उसे गले लगाती है, उसे चूमती है और उसको थैंक यू कहती है कि थैंक यू पापा, आपने मुझे ये कार ले दी। वो यही अल्फाज इस्तेमाल करती कि आपने मुझे वो कार दी, थैंक यू। हर एवरी डे। अभी के उसे वो कार मिली भी नहीं थी, उसके एग्जाम्स भी नहीं हुए थे, लेकिन वो हर रोज वो आती है और अपने बाप का शुक्र अदा करती है। वो अपने बाप के नाक में दम कर देती है उसको एवरी डे थैंक्स बोल बोल के, और उसका बाप क्या करता है, उसे वो गाड़ी ले देता है, उसे वो गाड़ी, उसकी चाबी उसके हाथ में पकड़ाता है। कि वो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो इतना खुदावंद का शुक्र अदा करती है कि जो चीज उसे एग्जाम्स के बाद मिलनी थी वो उसे उसका बाप पहले दे देता है।
हालेलुया। इसी तरह अजीजों, हमारा बाप जो आसमानी बाप है, जो कि हमारी हर एक जरूरत को जानता है, वो हमारे दिल की बातों को जानता है, जो हम सोचते हैं वो जानता है, जो हमारे दिल की ख्वाहिशें हैं उससे वो वाकिफ है। जब हम उसके हजूर में भी हर रोज खुदावंद की शुक्र गुजारी करेंगे, हर रोज उसके हजूर में आएंगे और उसे कहेंगे कि थैंक यू जीसस, थैंक यू, आपने मुझे इस बीमारी से शिफा दे दी है, आपने मुझे मेरा वीजा दे दिया है, आपने मुझे औलाद दे दी है। जो कुछ आपके पास नहीं है, अगर आप उसे थैंक्स गिविंग के साथ, शुक्र गुजारी के साथ खुदावन को जवाब रिस्पॉन्स करना शुरू कर देंगे, तो अजीजों आपका काम देखें, जो महीनों का काम है वो क्या होगा, वो हफ्तों में होगा, और जो हफ्तों का काम अगर रुका हुआ है वो दिनों में होगा, और जो दिनों का काम है वो घंटों में होगा। हालेलुया। मेरी बहुत बड़ी गवाही है, जिस तरह बहुत से बहन भाई जानते होंगे, मेरे हस्बैंड जो है वो यूरोप में होते हैं और मैं इंग्लैंड में, और हमने क्या किया, खुदावंद की शुक्र गुजारी करना शुरू की, और यकीन माने इम्पॉसिबल चीज थी। मैं आपको अपनी गवाही शेयर कर देती हूँ। जिस तरह बहुत से बहन भाई जानते हैं कि यूरोप जो है वो अलग हो चुका है इंग्लैंड से। पहले ये एक ही होता था और लोग इजीली आ जा सकते थे, अगर आपके पास आप इजीली यहाँ पर इंग्लैंड में मूव हो सकते थे, किसी चीज की भी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये दोनों सेपरेट हो गए। अब आपको इस कंट्री में उन्होंने डेडलाइन दी थी दिसंबर, जो कि गुजर चुका है 2020 में। तो जब आशिर को पासपोर्ट मिला था, यूरोपियन पासपोर्ट 2021 फरवरी में, तो डेडलाइन जो थी वो गुजर चुकी थी, और जब हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना कि हमने कहा खुदावंद तू सब कुछ कर सकता है, और मैं यहाँ तक कि मैं पाकिस्तान जाने के लिए एग्री हो गई थी कि चलो ठीक है मैं पाकिस्तान जाती हूँ। आशिर कह रहे थे कि मैं आपको पाकिस्तान से यहाँ पर बुलाऊंगा एम्स्टर्डम में, तो मैं पाकिस्तान में नहीं जाना चाहती थी। मेरी यही डिजायर थी कि मैं इंग्लैंड में ही रहूं। तो हमने खुदावंद के हुजूर शुक्रगुजारी करना शुरू की, और हम जब आशिर यहाँ पर आए जून में, तो हमने क्या किया, हमने एक वकील से बात की, और जब हम उस वकील के पास गए तो वकील ने कहा कि चांसेस बहुत कम है, लाइक 50-50 चांसेस, और पेमेंट भी जो थी कुछ ज्यादा थी। तो हम कह रहे थे हम क्या करें, केस डालें या ना डालें। तो खुदावंद का जो पाक रूह था हमें यही गाइड कर रहा था कि आप ये करो। तो हमने क्या किया, हमने केस डाल दिया, और हमने कहा कि जो भी खुदावंद तेरी मर्जी है, अगर तू चाहता है कि अगर तेरी मर्जी है तू यहाँ मुझे रख, अगर तेरी मर्जी नहीं है तो जहां भी तू मुझे लेकर जाए। मैंने ये अल्फाज अपनी दुआ में यूज करना शुरू कर दिए, खुदावंद तेरी जहां भी मर्जी है मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो जब हमने केस डाला तो यकीन माने 3 मंथ्स के अंदर अंदर जवाब आया, रिस्पॉन्स आया कि आशिर को जो है यहाँ पर प्री सेटलमेंट, वो इंग्लैंड में आकर सेटल हो सकते हैं। तो ये कब हुआ, जब हमने खुदावंद की शुक्र, ये गवाही बताने का मतलब ये है कि खुदावंद की शुक्र गुजारी करना शुरू कर दे। जो आपके पास नहीं है, जो काम रुके हुए आप समझ रहे हैं वो हो नहीं सकते, तो आप खुदावंद की शुक्र गुजारी करना शुरू कर दे। और हमारा खुदावंद बड़ा ही मेहरबान है, वो चाहता ही यही है, उसकी डिजायर ही यही है, उसकी मर्जी ही यही है कि हम उसकी शुक्र गुजारी करें। जब हम उसकी शुक्र गुजारी करेंगे तो देखें वो कैसे बड़े बड़े काम करता। आज आपके पास जो कुछ नहीं है, आप उसे फील करें, उसे रिसीव करें कि वो आपके पास है, और वो खुदावंद का शुक्र करना शुरू कर दे कि खुदावंद तू कितना भला है, तू कितना जलाली है, तू हर चीज पर गालिब आ जाता है। तो खुदावंद जरूर ऐसा करेगा। हम एक और हवाला देखेंगे, जबूर 50 और उसकी आयत नंबर 14 देखेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या चाहता है, खुदावंद की क्या मर्जी है। लिखा है कि हम जबूर देखेंगे 50, उसकी 14 आयत में लिखा है, खुदा के लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। प्रेज द लॉर्ड। किस तरह हमारी मन्नतें पूरी होंगी, जब हम उसके हजूर में शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानेंगे।
हालेलुया। अगर आपकी मन्नत है, कोई आपकी दिल की डिजायर है, तो क्या करना है? शुक्र गुजारी की कुर्बानी। इसके लिए हमारे कोई पैसे नहीं लगेंगे, हमारी कोई चीज जो है वो हमें कहेंगे वो हमारे पास तो पैसे नहीं है। हम किस तरह, जिस तरह गैर कौमें करती हैं, बछड़ों का, बर्रों का, बच्चों को ज़िबा करती हैं और अपने वो देवता को खुश करते हैं कुर्बानियां देकर। लेकिन हमारा खुदावन क्या चाहता है कि हम बस अपने होंठों को खोलें और शुक्र गुजारी करें, उसके लिए वक्त निकालें और उसके हजूर में जाकर शुक्र गुजारी करें, क्योंकि हमारे खुदावंद को बर्रों की, बछड़ों की, इस चीज की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उसको किस चीज की जरूरत है? शुक्र गुजारी की कुर्बानी। बहुत आसान है ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस पर हमें कोई पैसा नहीं लगाने पड़ेगा। बस खुदावंद के हुजूर में अपने होंठों को खोलें और उसकी तारीफ करें, जिस तरह दाऊद ने की, उसके जलाली नाम को ऊंचा किया। हालेलुया। एक और हवाला ज़बूर नंबर 50 और उसकी वर्स नंबर 23 देखेंगे, जिसमें लिखा है, शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरान, जो शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है। खुदावंद ने ऐसे ही नहीं कह दिया कि तुम शुक्र गुजारी की कुर्बानी गुजरानो। उसका रीजन भी बताया है कि क्यों खुदावंद चाहता है कि उसकी शुक्र गुजारी की जाए। क्योंकि जब हम उसकी शुक्र गुजारी करते हैं तो उसकी तमजीद होती है, उसके नाम को जलाल मिलता है, उसका नाम ऊंचा होता है। लिखा है, जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदावंद की निजात दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? खुदावंद की तमजीद करनी है शुक्र गुजारी के साथ। हालेलुया। क्या करना है? शुक्र गुजारी करनी है। शुक्र गुजारी की कुर्बानी उसके हजूर में लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज लोग किस तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं? हमने इर्द गिर्द अपने देखा ही होगा कि लोग कैसे खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जो लोग मसीह में भी हैं वो भी ऐसे करते हैं। जो लोग मसीह में नहीं, जिन्होंने मसीह को जाना ही नहीं, वो तो ये करते ही करते हैं। मैं आपके साथ एक हवाला पढ़ूंगी। अगर हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से देखें, रोमियो उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर अगर हम देखें 21 आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जता कर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और छिपाहों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। क्या लिखा है कि लोग जिस खुदाई के जिस लायक है हमारा खुदावंद, उस तरह आज लोग खुदावंद की तारीफ नहीं कर रहे। जो लोग खुदावंद, जो लिखा है कि जो लोग खुदावंद को जान भी गए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया। वो इस बात को जानते हैं कि कोई है आसमान पर जिसने ये सब कुछ बनाया है, कोई है जिसकी वजह से ये सांसें चल रही हैं, कोई है जो हमें खुराक देता है, हमें मुहैया करता है। वो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है आजकल? लोग जानवरों में खुदा को ढूंढ रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? कीड़े मकोड़ों में खुदा को ढूंढ रहे। वो जिंदा खुदा को लिखा है कि पानी, इंसान और परिंदों और चुपाहों और कीड़े मकोड़ों में, पत्थरों में खुदा को ढूंढ रहे हैं। वो पत्थरों के आगे झुक कर कहते हैं कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने हमें ये जिंदगी दी। वो उन देवताओं को खुश करते हैं जो खुद नहीं बोल सकते, ना तो वो छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना बोल सकते हैं। वो महज बुत ही है। लेकिन हमारा खुदा अजीजों, जो छूता है, जो हमें देखता रहता है, जो हमारी फिक्र करता है, जो हमारे दिल में अभी कुछ होता ही है तो वो हमें मुहैया कर देता है। हमें उस खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। प्रेज द लॉर्ड। जिस तरह अय्यूब कितने दुख में था, लेकिन उसने खुदावंद का शुक्र किया।
اس نے کہا کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. ہالےلویا. ہمیں اس طرح شکر گزاری کرنی ہے، داؤد کی طرح شکر گزاری کرنی ہے. ہم اپنے ہونٹوں کو کھولے اور خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کر دے. پریز دا لارڈ. ہالےلویا. عزیزوں، جو لوگ شکر گزاری جن کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، چند ایک باتیں ان کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ خداوند کی شکر گزاری نہیں کر پاتے. ہم ان باتوں کو دیکھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو شکر گزاری کرنا جن کے لیے مشکل ہے یا وہ کر نہیں پاتے. تو ہمیں اگر آج ہمارے اندر وہ باتیں موجود ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. پریز دا لارڈ. وہ لوگ جو کہ خداوند کو ابھی جانتے نہیں ہیں، جنہوں نے خداوند کو حقیقی طور پر نہیں جانا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی وجہ سے ہمیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو خداوند پر ایمان جو ہے پورا نہیں رکھتے، ڈگمگاتا ہے ان کا ایمان، وہ لوگ خداوند کے حضور شکر گزاری ان کے لیے کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود کنفیوز ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری محنت سے یا خداوند نے دیا ہے. وہ خداوند اپنے کہتے ہیں خدا پر بھی مان رکھتے ہیں اور دوسری چیزوں پر بھی مان رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنا ان کو مشکل لگتا ہے. وہ لوگ جو کہ خداوند کو بادشاہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ، اور بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا تو ایک ہی ہے، ہمیں خدا تو ایک ہی ہے، ہر ایک کا خدا ایک ہے. کچھ لوگوں کا یہ الفاظ ہوتے ہیں، یہ بات ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے، لیکن وہ خدا کون سا ہے، وہ بادشاہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا خدا یہوہ یری، وہ ہے بادشاہوں کا بادشاہ. وہ کہتے ہیں راستے الگ الگ ہیں لیکن خدا ایک ہے. وہ دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارا خدا ہے وہ ایک ہی ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو پوجا جائے. تو وہ لوگوں کے لیے پریز دی لارڈ. تو ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جو لوگ ڈیفرنٹ وے پر چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا ایک ہی ہے. وہ دوسرے خداؤں کو بھی خوش کرتے ہیں اور یہوہ یری کو بھی خوش کرتے ہیں. تو عزیزوں، جو لوگ جن کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، جو غرور کرتے ہیں اپنی دولت پر، اپنی محنت پر، ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا بہت مشکل ہے. انہیں اپنے اندر سے یہ بات نکالنے کی ضرورت ہے. وہ لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جو عہد کر کر بھول جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ میں خداوند کے لیے یہ کروں گی یا کروں گا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اس طور سے وہ خداوند کی شکر گزاری. تو انہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی بات پر قائم رہنا ہے. جو خداوند کے ساتھ انہوں نے پرومس کیا اسے پورا کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے اندر جو یہ چیز ہے اسے اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جو کہ دنیا کی فکروں میں رہتے ہیں، دنیا کی ہی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں اور خداوند کو بھول جاتے ہیں. ہمیں خداوند کی طرف دھیان لگانا ہے کہ اسی نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اور دنیا کی فکروں سے نکل کر ہمیں خداوند کے حضور میں جھکنا ہے اور اس کے نام کو جلال دینا ہے. ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کام کہ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ایمان میں کمزوری کہہ لیں، یہ جو کہتے ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے لیکن ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ میں ان کے اندر جو شک ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے. جس طرح میں نے ابھی آپ کے ساتھ اپنی گواہی کو شیئر کیا کہ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تب ہی ہمارے اندر سے کیا ہوتا ہے؟ شکر گزاریاں نکلتی ہیں. تو اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اپنے اندر سے ہر طرح کی نیگیٹو سوچ کو نکالنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے
جو حسد رکھتے ہیں وہ بھی لوگ بڑے مشکل سے ان کے لیے مشکل ہے یہ کام شکر گزاری کرنا، کیونکہ ان کے اندر حسد ہوتی ہے۔ اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں کے لیے شکر گزاری کرنا مشکل ہے جو کہ اپنے اندر غصہ رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ ان باتوں کو جب ہم اپنے اندر سے نکالیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا دل شکر گزاریوں سے بھر جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اندر سے، اگر یہ باتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمیں اپنے اندر سے ان باتوں کو نکالنے کی ضرورت ہے، اور داؤد کی طرح، کس کی طرح؟ داؤد کی طرح، جس طرح اس نے خداوند کے حضور شکر گزاری کی۔ اس نے کہا خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہم تو خاک ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اس نے اس کے نام کو جلال دیا۔ اس کے نام کو جلال دیں تو یہ ہے خداوند کی شکر گزاری۔ اس کے حضور میں شکر گزاری قربانی لانا کیا ہے؟ اس کی تمجید کرنا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو میرا ایمان ہے آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند نے جس طرح مجھے برکت دی، آپ کو بھی برکت دی ہوگی، اور اپنی سوچ کو جو ہے وہ ہمیشہ پوزیٹو رکھیں اور خداوند پر ایمان رکھیں، پختہ ایمان، مضبوط ایمان۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارا ہر ایک کام ہونا شروع ہوگا، اور خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں، اور آپ کے رکے ہوئے کام، میرا ایمان ہے، ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔